Because they should know chemistry, its concepts, and its daily use application. So let's start. Importance of chemistry. Chemistry has a direct impact on our life and has a wide range of applications in different fields. These are given below in agriculture and food. It has provided chemical fertilizers such as urea, calcium phosphate, sodium nitrate, ammonium phosphate, etc. It has helped to protect the crops from insects and harmful bacteria by the use of certain effective insecticides, fungicides, and pesticides. The use of preservatives has helped to preserve food products like jam, butter, biscuits, etc. for longer periods. So students, by reading this paragraph, you have learned so many things. You have understood the importance of chemistry. Without chemistry, our body cannot work. You know, food digestion. What is food digestion? What we eat. What we eat food, it changes into glucose, then we get the energy. So without chemistry, our body cannot work, we cannot live. Our body is full of chemistry. Our breathing system, okay, blood formation, urination, everywhere chemistry takes place. Our body is full of chemistry. Then if you go the outer world, there are so many importance of chemistry. Some of the examples are given here. These are some names of chemicals like urea, calcium phosphate, sodium nitrate, ammonium phosphate. First of all, I want to tell you, in the beginning you will face the problem to learn the names of chemicals, but gradually you can learn all the names of chemicals if you revise it frequently. Okay, so don't fear about it. Another use of chemicals or chemistry is crop protection from insects and harmful bacteria. Nowadays, you know, this is COVID-19 situation and everybody need to keep sanitizer to kill the bacteria, virus. So it is great invention of chemistry. Chemistry gives sanitizer, medicines, and farmers protect their crop with the help of pesticides. This is also a great importance of chemistry to kill the fungus,
chemicals are used, preservatives. Do you eat jam, butter, squashes? How these food items are preserved in the bottles for many months? See, if you keep chapati or roti in your home, the next day it is not good for eating because some bacteria and fungus attack the bread. Okay, so how these packaged items are in good condition for many days or for many months with the help of preservatives, and preservatives are produced with the help of chemistry, concept of chemistry. We are in our next slide in health and sanitation. It has provided mankind with a large number of life-saving drugs. Today, dysentery and pneumonia are curable due to discovery of sulfur drugs and penicillin. Life-saving drugs cipraletin and taxol have been found to be very effective for cancer therapy, and AZT, azidothymidine, is used for AIDS victims. Disinfectants such as phenol are used to kill the microorganisms present in drains, toilet floors, etc. A low concentration of chlorine, that is 0.2 to 0.4 parts per million ppm, is used for sterilization of water to make it fit for drinking purpose. Students, इससे पीछे की स्लाइड में आपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें आपने जाना कि हमारे जीवन के हर अंग में केमिस्ट्री का योगदान है। जैसे आपके शरीर में जो भोजन की पाचन क्रिया होती है, भोजन खाने के बाद वो पचता है, उसका ग्लूकोज बनता है, और आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसमें केमिस्ट्री ही है, ये सब केमिकल चेंजेस ही हैं जो कि आपके बॉडी में हो रहे हैं। आपके शरीर को ऊर्जा केमिकल चेंज से ही मिलती है। मूत्र का विसर्जन, मूत्र का बनना शरीर में, ये भी एक केमिस्ट्री का ही उदाहरण है। आप खाना पकाते हैं तो गैस सिलेंडर की जो गैस को आप यूज करते हैं जलाने के लिए और तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वो भी एक केमिस्ट्री है। उसमें भी केमिकल चेंज होते हैं। बाजार से जो दवाइयाँ लाकर आप अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं, या बीमार होने पर जो भी आप दवाइयाँ खाते हैं, वो भी केमिस्ट्री से ही बनती है। केमिस्ट्री का उपयोग करके ही ऐसी दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो आपने केमिस्ट्री के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में अनगिनत उपयोग है। ठीक है, आपके सामने जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो आइटम्स हैं, इनका जो निर्माण हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का
योगदान है। जैसे प्लास्टिक का निर्माण कैसे होगा, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण वो भी केमिस्ट्री से ही होगा, है ना। तो केमिस्ट्री हमारे जीवन से कभी अलग नहीं हो सकती है और ये हमारे साथ जीवन के हर क्षण में है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस स्लाइड को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग इन हिंदी आई टोल्ड यू ड्रग्स, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स are made with the help of chemical reactions. Okay, you know, some life-saving drugs we use for dysentery and pneumonia are curable due to discovery of sulfur drugs and penicillin. Okay, these are the names of drugs: sulfur drugs and penicillin, life-saving drugs. Cisplatin and Taxol have been found to be very effective for cancer therapy and AZT. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहले जब केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, इतना लोग केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे, तो लोगों की जान चली जाती थी। किसके कारण? कौन सी बीमारी के कारण? डिसेंट्री, दस्त लगने और निमोनिया के कारण। निमोनिया हो जाने से, डिसेंट्री हो जाने से कई लोग मर जाते थे, क्योंकि उस समय इनकी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। लेकिन केमिस्ट्री के योगदान से ऐसी दवाइयाँ प्राप्त कर ली गई हैं जिससे कि डिसेंट्री और निमोनिया को ठीक किया जा सकता है और आदमी की जान बचाई जा सकती है। और कौन सी दवाइयाँ हैं? उन दवाइयों के नाम आप हमेशा याद रखिए: सल्फर ड्रग्स और पेनिसिलिन। इनको जीवन रक्षक दवाइयाँ बोलते हैं। और भी कुछ हम दवाइयों के नाम जानेंगे और उनको याद रखेंगे। और ये दवाइयाँ हैं सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले तक, आज से 10 साल पहले या उससे पहले, कैंसर का कोई इलाज नहीं था। लोग कहते थे कि कैंसर असाध्य है, इसकी कोई दवा नहीं हो सकती है, और कई लोग कैंसर के कारण मर जाते थे और उनको दवाइयाँ भी नसीब नहीं हो सकती थी। लेकिन आज के समय में केमिस्ट्री का इतना बड़ा योगदान है कि उसने कैंसर जैसी महामारी का भी दवा खोज लिया है। ठीक है, अब कैंसर का भी इलाज संभव है। और वो दवा कौन सी है या कौन सी टेक्निक है जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है? वो है AZT। AZT इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान से पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। एजिडो, A फॉर एजिडो। ओके, एजेड का यहाँ पे फुल फॉर्म है एजिडो, और टी के लिए है थाइमाइडाइन। एजिडो थाइमाइडाइन। नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, है ना। इज यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स। ये AZT का जो उपयोग है किसके लिए करते हैं? एड्स के लिए करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब शुरू में एड्स आया था तो इसकी कोई दवा नहीं थी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता था कि अगर किसी का एड्स हो गया तो कुछ ही दिनों में वह मर जाएगा, क्योंकि इसकी दवा बहुत समय तक बाजार में उपलब्ध नहीं थी। ये बहुत ही भयावह बीमारी थी जिसका कि इलाज संभव नहीं है, और किसी को एड्स हो जाने पर लोग उसको घर पे रखना पसंद नहीं करते थे। उसको संक्रामक बीमारी की तरह माना जाता था और उसका कोई इलाज नहीं होता था। और एड्स जिनको हो गया तो कुछ ही समय में
उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज के समय में एड्स का भी इलाज संभव है, वो भी AZT की मदद से। डिसइंफेक्टेंट्स सच एज फिनॉल, ये फिनॉल जो है बहुत ही कॉमन केमिकल है जो कि लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। फिनॉल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फिनॉल का इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, मारने के लिए। जैसे कि घर के फर्श में, टॉयलेट में, ड्रेन्स में, गंदी नालियों में, फर्श में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए इनको मारना आवश्यक है और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए एक केमिकल यूज किया जाता है और उसका नाम है फिनॉल। अगले केमिकल की तरफ बढ़ते हैं और उसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं। अगला केमिकल है क्लोरीन। क्लोरीन सुना होगा? नहीं सुना? जो हम नमक खाते हैं उसमें क्लोरीन होता है। नमक का केमिकल नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है ना? तो क्लोरीन के बारे में जानना जरूरी है। तो क्लोरीन का दूसरा उपयोग क्या है? ठीक है, ये क्लोरीन का उपयोग होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। आपको पता है कि पीने के पानी में कई जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं और इस तरह के पानी पीने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डिसेंट्री भी हो सकती है, जैसे ऊपर मैंने बताया। तो पानी पीने से पहले इसके बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु को मार देना चाहिए, जिससे कि ये पानी हमको बीमार ना करे। क्योंकि जो पानी है कहाँ से मिलता है? नदियों से मिलता है, और नदियाँ जो बहकर आती हैं कभी कभी उसमें गंदे पानी का भी मिलाव हो जाता है, या सीवेज लाइन भी कनेक्ट कर दी जाती है। तो इस तरह के पानी में बहुत ही खतरनाक जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। तो इसको स्टेरिलाइज करना, स्टेरिलाइज का मतलब क्या है? इसके जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस को मारने की प्रक्रिया है। तो इस कैसे मारेंगे इसकी बैक्टीरिया को? उसके लिए हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वो है क्लोरीन। और इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्लोरीन भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए क्लोरीन की बहुत कम मात्रा उपयोग में लाई जाती है, और वो है 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, पार्ट्स पर मिलियन। तो इस प्रकार से आप जान गए कि क्लोरीन का उपयोग क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी केमिकल के उपयोग या केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या योगदान है उसके बारे में समझते हैं। सेविंग द इन्वायरमेंट, द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड has resulted in lot of pollution. Poisonous gases and chemicals are being constantly released in atmosphere. They are polluting environment at an alarming rate. Scientists are working day and night to develop substitutes which may cause lower pollution. For example, CNG, compressed natural gas, a substitute of petrol, is very effective in checking pollution caused by automobiles. Friends, आपको पता होगा कि आज हमारा environment बहुत ही प्रदूषित हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। क्यों? दिन रात गाड़ियाँ चलती हैं, उसका धुआं। आजकल हम किचन में गैस जलाते हैं, उसका भी धुआं है। कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रहा है। फैक्ट्रियों से दिन रात धुआं निकलता है। ठीक है, खेतों में हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक जो कि पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, तो आज हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रिया में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं एक पोल्यूशन का कारण है। ठीक है, तो भारी मात्रा में ये धरती
पॉल्यूट हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। ये पॉइजनस गैसें, जो जहरीली गैसें हैं, केमिकल्स हैं, वो लगातार दिन और रात एटमॉस्फेयर में छोड़े जा रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि इस तरह का पोल्यूशन में एक स्वस्थ जीवन जीना असंभव है। तो अब साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें बनाई थी हमारे आराम के लिए। अब वही आराम हमारा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि उससे इतना पोल्यूशन हुआ है कि इससे हमारी सेहत पर फर्क पड़ता है। एक स्वस्थ जीवन जीना अब कठिन हो गया है। तो साइंटिस्ट अब दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस पोल्यूशन को कम किया जा सके। उसके लिए भी केमिस्ट्री का ही उपयोग करेंगे। केमिस्ट्री के उपयोग से, उसके नॉलेज से ही इतना सारा पोल्यूशन हुआ है, तो इसका तोड़ भी हमें केमिस्ट्री में ही मिलेगा। तो अब जो हम यूज कर रहे हैं ईंधन CNG, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि पेट्रोल का एक सब्स्टिट्यूट है और ये पोल्यूशन को बहुत कम कर देता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि पहले हम खाना पकाने के लिए लकड़ी का, कोयला का इस्तेमाल करते थे। तो लकड़ी कोयला में कितना धुआं होता था। 2 वक्त की रोटी बनाते थे, लेकिन लकड़ी और कोयला अगर जला दिया तो पूरे गांव में धुआं ही धुआं हो जाता था। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाते थे, अभी भी जलाते हैं। उससे इतना धुआं होता है कि पूरा गांव और शहर जो है पूरा धुएं से भर जाता था। तो हमें एक ऐसे ईंधन की जरूरत है जो कि बहुत कम स्मोक करे और ज़्यादा एनर्जी दे। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन के कारण सभी ऑटो बंद कर दिए गए और उन्हीं ऑटो को अलाउ किया गया जो कि CNG से ऑपरेट होते हैं। Our new topic, application in industry. Chemistry has played an important role in developing many industrially manufactured fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metallize, and other inorganic and organic chemicals, including new materials, contribute in a big way to nation economy. स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में केमिकल का बहुत बड़ा योगदान है। जो केमिकल इंडस्ट्री है उसने नेशनल इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो कराया है। कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि केमिस्ट्री पर ही आधारित है, जो पूरा केमिकल का ही काम करती है। ठीक है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से केमिकल पर ही काम करती है? वो है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या है? पूरी तरह से केमिकल प्रोडक्ट है ना। अभी तो आप इनके नाम सीख जाओ, बाद में ये क्या है, इनका क्या उपयोग है, उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला हो गया फर्टिलाइजर्स, जो खेतों में उर्वरक के रूप में काम मिलाया जाता है। अल्कलीज, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, ये पूरी तरह से केमिकल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ये पूरे केमिकल्स ही हैं। सोप भी आपका केमिकल ही है। ठीक है, हम इसे नहाते जरूर हैं, लेकिन क्या है, ये केमिकल है जो कि हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं और उसका बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। कुछ डिटर्जेंट्स, मेटालाइज and other inorganic and organic chemicals, including new material, contribute in a big way to the national economy. पहले हमारे देश में केमिकल से संबंधित काम नहीं होते थे, ये बहुत कम होता था। लेकिन जब से ये केमिस्ट्री का उपयोग करके, इसकी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके जब से हमारे देश में केमिकल इंडस्ट्री के कई कारखाने, उद्योग बनाए गए हैं, तो हमारे
देश की इकोनॉमी कई गुना बढ़ गई है। अब भारत इस तरह विकसित हो चुका है कि कई केमिकल और प्रोडक्ट्स हम दूसरे देशों में भी निर्यात करते हैं।